Assalamu alaikum and a very good morning to all my students of class 4th. I hope you all are doing very well at your home and taking care of yourself also and safety regarding the coronavirus. I request all the students to please be careful while you are going out. Wear the mask, wear the gloves whenever you come back from the out at your home. Please wash your hands, wash your leg and even your face. Please take care of yourself as the situation is very worst going over the world. So student, welcome back for the classes, that is EVS subject. We have already started our chapter number 1, that is going to school. I hope you remember this chapter. We are learning about the different students in the different area, that what type of vehicles, what type of transport they use to go from one place to another, means they are using the way to go to their schools. We learn about the Vallam. Vallam is a wooden boat which is used in Kerala. We learn about the trolley. We learn about the bamboo bridge, right? Now in part number 3 of this video, chapter number 1, we are going to learn about the many other different places where the students used to go. Okay student, so let's see the first one. Okay, have you seen any other kind of boat? Okay, before starting this explanation, I would like to tell each and every student that please take out your textbook. Whenever your teacher is making you learn anything, your textbook should be there of the particular subject. And I request all the students to please take the pencil as well as the eraser also with you, because the textual exercise which I am making you understand by through the videos, you have to write in your textbook also beta. For the CW notes, I will be providing you the PDF file in the WhatsApp group, but for the textual exercise I'm going to give you in the video only. So you have to pause the video and at that time you have to write in your textbook with the help of the pencil, and please mandatory the date also, that on which date you have written. Okay, so today is the which day? Today is the 10th, and 10th of April you are going to write this textual exercise in your textual book. So yes, this is about the previous video question about the water body. So what is the question has been asked here? Have you seen any other kind of boat? Means what is the question कि अभी तक हमने different types of boats देखी है, तो इस वीडियो में ऐसा पूछ रहे हैं कि आपने कोई अलग सी बोट और भी देखी है वुडन बोट के अलावा? यस, हम बहुत सारी बोट्स को देखते हैं. वी आर वॉचिंग द कार्गो, जिसमें सारा सामान रखा कर जा सकता है, क्रूज है ना, many others boats. So what is the answer you have to write? Yes, comma, I have seen other kinds of boat. हमने दूसरे तरीके की भी बोट्स बहुत सारी देखी है. Now shift to the second question. What is the second question? Can you think of other way by which we can travel on water? क्या तुम मुझे दूसरे तरीके भी बता सकते हो जिसमें हम पानी में चल सकते हैं? Yes, there are big boats like steamers etc. बहुत बड़ी बड़ी बोट्स आती है ना, क्रूज़ आती है, स्टीमर्स आती है, शिप्स आती है, जिसमें हम बैठकर पानी के ऊपर जा सकते हैं. Now what is this student? Can you see this? This is an camel cart. Camel cart यानी ये जो पीछे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, जहाँ पर ये बच्चे बैठे येलो टी शर्ट पहन के, ये कार्ट है और इसको कौन सा एनिमल बोला जाता है? कैमल.
कैमल इज़ द डेक्स ऑफ द शिप, कौन से उसको शिप बोला जाता है? तो कैमल इज़ अ शिप ऑफ द डेजर्ट, उसको डेजर्ट यानी रेगिस्तान का शिप बोला जाता है, बिकॉज कैमल डेजर्ट एरिया में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द राजस्थान। अब जो बच्चे राजस्थान स्कूल में पढ़ते हैं, राजस्थान स्टेट में रहते हैं, एंड दे लिव देयर इन द राजस्थान, एंड हाउ दिस चिल्ड्रन गो टू देयर स्कूल, व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन, वो किस में बैठ कर अपने स्कूल तक जाते हैं। सो दिस स्टूडेंट यूज़ द कैमल कार्ट, क्या यूज़ करते हैं? ऊँट गाड़ी ये यूज़ करते हैं, इसको इंग्लिश में कैमल कार्ट बोला जाता है। वी लर्न, वी लिव इन द डेजर्ट, क्या लिखा है? वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड, हम डेजर्ट में रहते हैं और हमारे चारों तरफ क्या है? सैंड है, सैंड यानी रेती। इट्स गेट वेरी हॉट, एंड इट्स गेट वेरी हॉट का मतलब कि वो सन में, धूप में दोपहर के टाइम पर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। येस, दैट इज़ द फैक्ट। आप अभी देख रहे हो ना, काफ़ी दिनों से यहाँ हमारे सिटी में, भरूच सिटी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दोपहर में। वी फील वेरी हॉट एंड वी कैन नॉट गो आउटसाइड विदाउट वेयरिंग अवर चंपल और स्लीपर्स, है ना। बाहर जाना बहुत रिस्की है, हम नंगे पैर बाहर नहीं जा सकते। वाई? बिकॉज वी फील हॉट, हमें जलन हो सकते हैं, हमारे पैर क्या हो सकते हैं? जल सकते हैं, ब्लिस्टर्स हो सकता है हमारे पैरों पर, इसलिए हम नंगे पैर बाहर नहीं जा सकते धूप में। तो ये जो बच्चे राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान स्टेट में रहते हैं, वो बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि वी लिव इन द हॉट सैंड, हम गर्म रेती पर डेजर्ट में रहते हैं। इन द डे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है दिन में। वी राइड इन द कैमल, और इसीलिए डेजर्ट में सिर्फ कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जो वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सकता है और इजीली वॉक कर सकता है बाकी अदर एनिमल्स से। इसीलिए ये बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि जब भी हमें स्कूल जाना होता है, हम किसका यूज़ करते हैं? हम कैमल कार्ट यूज़ करते हैं और उसके ऊपर बैठकर हम इजीली स्कूल जाते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन। What is the question written here? Have you ever sit in a camel cart or horse carrying tanga? Where did you climb on it yourself or did someone helps you? अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कभी भी आपने कैमल कार्ट पे बैठे हैं? कैमल को हिंदी में क्या बोला जाता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट द कैमल इज स्पोकन इन हिंदी? ऊँट गाड़ी। तो ऐसा पूछा है कि कभी भी आपने ऊँट गाड़ी की सवारी की है, यानी कैमल कार्ट की सवारी की है, या हॉर्स कैरेज किया है, घोड़ा गाड़ी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में टांगा। अगर किया है तो कहाँ किया है, और उसके ऊपर बैठने के लिए आपको किसने हेल्प किया है? सो व्हाट इज़ द आंसर हियर? यू हैव टू राइट येस, इन टांगा। हमने कैमल कार्ट में तो नहीं बैठे, बट हाँ हम टांगे में बैठे, यानी घोड़ा गाड़ी में बैठे हैं। हु हेल्प यू? किसने हेल्प की? येस, द टांगा वाला हेल्प्ड मी। जो टांगा वाला होता है ना, ये जो आदमी है ना, इसको क्या बोलते हैं? द कैमल कार्ट पर्सन, जो ये ऊँट गाड़ी चलाता है उसको। तो टांगे वाला किसको बोलते हैं? जो टांगा चलाता है उसको टांगे वाला बोलते हैं। तो वो भैया ने हमारी मदद की थी उसके ऊपर बैठने के लिए। वेयर? तो मोस्ट ऑफ हम घोड़ा गाड़ी और ये जो कैमल राइड है वो कहाँ देखने को मिलता है? इन द पार्क, है ना, जहाँ हम घूमने जाते हैं वहाँ पर। सी साइड पर हमें हॉर्स राइडिंग के लिए मिल जाता है, यानी घोड़ा गाड़ी हमें सी समुंदर। आप बॉम्बे में जाओ तो वहाँ रात को ये घोड़ा गाड़ी चलती है। आप राजस्थान अजमेर में जाओ तो वहाँ पर कैमल कार्ट भी चलता है और टांगे वाल भी चलता है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ये मूव होता है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? नाउ कैन यू सी दिस इज़ द कैमल एंड दिस इज़ द डेजर्ट। आपको ये जो ब्राउन कलर का जो सब दिख रहा है, दिस इज़ द टोटली डेजर्ट। ये क्या है?
डेजर्ट है जिसमें कौन चल सकता है इजीली? कैमल, यानी कैमल इज़ द शीप ऑफ द डेजर्ट। हु इज़ द शीप ऑफ द डेजर्ट? कैमल। जैसे पानी में बोट्स आसानी से चल सकती है, कार चल सकती है पानी में? नहीं। क्या चल सकता है इजीली? बोट। वैसे ही डेजर्ट में कौन सा एनिमल एकदम स्मूथ और इजीली चल सकता है? विच एनिमल? दैट इज द कैमल। सो कैमल रन वेरी इजीली ऑन द डेजर्ट। और ये एक डिसिप्लिन भी आपको, ये कैमल को देखकर आप एक और डिसिप्लिन सीख रहे हो। यू आर लर्निंग वन डिसिप्लिन। कैमल इज द एनिमल, वो एक जानवर है, but we are human beings and human beings learn more discipline than the animals. What here has been written? Discipline learn from me. यानी ये कैमल बोल रहे हैं आप सबको कि आप सब मुझसे एक डिसिप्लिन सीखो। क्या डिसिप्लिन सीखना है? कैन एनीवन गेस? मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इस कैमल को देखकर माइंड में सोच लिया होगा कि इसमें से हमें क्या डिसिप्लिन सीखना है। दैट that whenever you come back to the school or if you go somewhere else, you always have to stand in a queue मतलब लाइन में खड़े रहना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर माना जाता है। आप असेंबली हॉल में स्ट्रेट लाइन में खड़े रहो। असेंबली हॉल में से जब आप डिस्पेड होते हो, क्लास के लिए जाते हो, तो आपको लाइन में जाना चाहिए, आपके हैंड्स को पीछे करके जाना चाहिए, यानी ये डिसिप्लिन मैनर है। तो ये कैमल बोल रहे हैं कि आप यहाँ से मुझसे एक डिसिप्लिन सीख रहे हो कि आप देखो सभी कैमल्स एक से एक लाइन में है। दे आर वॉकिंग इन अ सेम लाइन, देयर इज नो zigzag, है ना। सो वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हैव टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, वी हैव टू स्टैंड इन अ सेम queue. So this is a very good discipline that we have to learn from the camel. So camel is telling, learn this discipline from me. I hope everyone have learned. Whenever inshallah, whenever the schools will run very easily and very smoothly, at that time all the students have to walk in a queue only, है ना। That is a very good habit. I'm so sorry. See the next. Now, can anyone see what is this? Can anyone tell me what is this called? What this is called? This is called a bullock cart. What is this called? A bullock cart. A two cow or a ox can run this cart, right? Now see, we ride in our bullock cart, going slowly through the green field. If it is too sunny or rainy, we use our umbrella. Now what these students are telling of the village? These students are living in the village and they are telling that whenever it is sunny day, means जब भी धूप होती है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, then we use our umbrella on bullock cart. अब ये बच्चे कौन से हैं? जो गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, वो बच्चे विलेज से सिटी में आने के लिए किस व्हीकल का यूज़ करते हैं? सो दे यूज़ द bullock cart. Which vehicle they use? They use the bullock cart. Which vehicle, student, they use? They use bullock cart. Now I will show you the some of the picture of the bullock cart. Now see, going to school by bullock cart, some carts have the roof. मतलब ये और ये bullock cart में क्या difference है? Anyone can tell me what is the difference between these two bullock cart? The roof is the different. रूफ मतलब दिस इज़ नोन एज द रूफ। ये आप देख रहे हो मेरा जो रेड एरो जा रहा है उसको बोला जाता है रूफ, यानी छत। आपके घर पे भी रूफ है ना, आपकी जो छत होती है, ऊपर वाली जो छत होती है, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रूफ। सो दिस इज़ नोन एज अ रूफ। यानी कुछ बुलक कार्ड ऐसी ओपन होती हैं
और कुछ बुलक कार्स में ऐसे ऊपर रूफ आते हैं जिससे अंदर बैठे हुए बच्चों को सन नहीं लगता है, यानी गर्मी नहीं लगती है, और बारिश में भी वो बारिश से भीगने से बच सकते हैं। तो कुछ बच्चे की बुलक कार जो है वो ऐसी रूफ वाली होती है और कुछ बच्चे की बिना रूफ की होती है। जिसके बुलक कार्स पर रूफ्स नहीं होते हैं, दे यूज़ इन द सनी डे एंड इन द रेनी डे व्हाट दे यूज़ द अम्ब्रेला। जिसको ऐसी रूफ नहीं होती वो क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला। एंड अ पर्सन who are having the roof, they are safe from the sunny and from the rainy days. स्टूडेंट, आई होप अभी तक आपको समझ में आया। हमने बम्बू ब्रिज के बारे में पढ़ा कि बम्बू ब्रिज से भी बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्रॉली में भी बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं, बोट में भी बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। नाउ वी हैव लर्न अबाउट द कैमल कार्ड, देन हॉर्स कार्ड, देन दिस बुलक कार्ड। यानी city wise and state wise people are having a different type of transportation. We are living in a city. In which city we live? We live in a Bharuch city and Bharuch is a developing city. वो developing city है, वो develop हो रही है, and we get all kind of facility in the city rather than the different kinds of areas. हम सिटीज़ में रह रहे हैं इसलिए हमारे पास फैसिलिटी है ऑफ ऑटो रिक्शा, कार, वैन, बस, स्कूटर एंड साइकिल. But the students who are living in the village, they are having only the one facility to come near to the city, and that is the bullock cart. So आपको समझ में आया रूफ और विदाउट रूफ बुलक कार्ड. रूफ क्यों होता है? टू प्रोटेक्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द सनी एंड द रेनी डेज. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट. Now this is again a some of the question which you have to write in your text notebook. The first question, do you have bullock cart where you live? Student, you are living in a city. Which city do you live? You live in a Bharuch city. Where do you live? You live in the societies, right? A very developed society. Do you see any bullock cart near your society? No. So the answer is only no. A very sweet and short answer. N-O, no. We don't see any bullock cart where we are living. The second question, does it has a roof? Of course, we are not seeing any bullock cart. So here there is a two type of answer. Yes as well as the no. I have written here no. You have to write yes or no. Both the answers are the correct. Because why? Because some of the bullock carts has the roof and some do not have. इसका आंसर मैं वापस से आपको बताना चाहूँगी. देखिए, इधर देखिए, ये बुलक कार्ट को रूफ नहीं है और इसको रूफ है. पर क्या है, मोस्ट ऑफ द बुलक कार्ट को रूफ नहीं होती है. कुछ ही बुलक कार्ट ऐसी है जो लोग रूफ डलवाते हैं बच्चों के लिए, वरना तो मोस्ट ऑफ द people use this bullock cart. So for this reason here we have written the answer no. और इसी के लिए हमने यहाँ पर क्या आंसर दिया है? No. Now see the next question. What is the next question? What kind of wheels do they have? अब बुलक कार को कैसे व्हील्स होते हैं मैं आपको वापस से दिखाती हूँ. सी देयर व्हील्स. आप इनके ये व्हील्स देखो, ये दिख रहे हैं. यू कैन सी दिस व्हील्स, है ना. इनके ये जो व्हील्स दिख रहे हैं ये वाले, वो कैसे बने हैं? वुडन व्हील्स है. कैसे हैं? वुडन है, लकड़े के बने हुए हैं. लार्ज वुडन व्हील्स विथ आयरन राइम्स, RIMS रिम्स. लकड़े के पूरे जो उनके व्हील्स होते हैं, जो पहिए होते हैं, वो पूरे लकड़े के बने हुए होते हैं और उसके बीच में क्या लगा होता है? आयरन रिम्स, RIMS रिम. Again and again I am telling you have to write all this textual question and answer in your textbook with the help of the pencil. Student, में CW में जो लिखने का काम होगा
मैं आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगी विद द हेल्प ऑफ द PDF फाइल, बट टेक्स्ट बुक में जो लिखने का काम है वो वीडियो में ही आएगा। आपको वीडियो से उसको नोटबुक में कॉपी करना है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि यू हैव टू टेक योर टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विथ यू when you are watching the EVS subject video. Okay student, now see the next. Oh, now this is the bicycle ride. What is this student? Can you see in this picture so many girls who is living in the village? They are running the bicycle. What is this known as? इसको क्या बोला जाता है? Bicycle यानी साइकिल। कितने बच्चे साइकिल चलाते हैं? टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू आर रनिंग द बाइसिकल? मैनी स्टूडेंट्स, है ना, मोस्ट ऑफ सभी बच्चे को बाइसिकल चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। नाउ लेट्स सी, बाइसिकल राइड यानी राइड मतलब घूमने ही जाना। वी राइड अवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू द स्कूल। ये जो लड़कियां हैं वो ऐसा बोल रही है कि वी आर रनिंग द बाइसिकल्स, हम बाइसिकल घुमाते हैं और इतना लॉन्ग रूट होता है यानी इतना लंबा रोड होता है जिसको क्रॉस करके हम कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल। पहले इस विलेज में जहाँ ये लड़कियाँ रहती थी उस गांव में लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थी। वाई? क्यों? बिकॉज उनको जाने के लिए कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं था। बिकॉज इट वॉज टू फार, बिकॉज उनके विलेज से उनका जो स्कूल है वो काफ़ी दूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो स्कूल के कुछ बच्चे हैं वो काफ़ी दूर एरिया से आते हैं। सम कम्स फ्रॉम द पालेट, सम कम्स फ्रॉम द तंकारिया, सम कम्स फ्रॉम द नबीपुर, some comes from the Waghra, Dayadra, है ना। Many students comes from the different village to reach our school till Bharuch। और आपको पता है क्या, वैन में बैठकर आते हो 1 hour and a half होता है, हाफ एन आवर होता है, 1 hour आपको लगता है स्कूल आने में। तो ये लड़कियों को भी यही प्रॉब्लम थी कि उनका स्कूल उनके विलेज से काफ़ी दूर था और पैदल चल के आना पॉसिबल नहीं था। बाय वॉकिंग दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रीच द स्कूल। बट नाउ ग्रुप ऑफ 7 to 8 गर्ल्स easily राइड एवरी थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड। बट अभी 6 से 8 लड़कियों का ऐसा ग्रुप होता है। सभी लड़के ऐसे ग्रुप में 6 से 7 8 के ग्रुप में लड़कियां साइकिल लेकर एक साथ अपने गांव से लेकर स्कूल तक जाती है और जितना भी डिफ़िकल्ट रोड हो वो आराम से उसको क्रॉस कर लेते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? कैन यू राइड अ बाइसिकल? क्या आप बाइसिकल चला सकते हो स्टूडेंट? येस। इफ़ येस, हु टॉट यू टू राइड? तो आपको बाइसिकल चलाना किसने सिखाया? सो व्हाट इज़ माई आंसर हियर? येस, आई कैन राइड बाइसिकल। मैं बाइसिकल चला सकता हूँ। माई फादर टॉट मी। किसने सिखाया मुझे बाइसिकल सिखाना चलाना? माई फादर। किसी के मम्मी ने सिखाया होगा या किसी के बड़े भाई बहन ने सिखाया होगा या किसी के दादा दादी ने सिखाया होगा। सो दिस द सेकेंड आंसर, यू कैन राइड बाय योर ओन सेल्फ। क्या आपको साइकिल किसने चलाना सिखाया? आप उसका नाम खुद लिख सकते। यहाँ मैंने लिखा कि माई फादर टॉट मी, आप यहाँ लिख सकते हो माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई ग्रैंड पेरेंट्स, एनी वन, टू योर चॉइस। बट येस, आई राइड बाइसिकल। मैं बाइसिकल चलाता हूँ या चलाती हूँ और मुझे जिसने भी चलाना सिखाया है उसका नाम यू हैव टू राइट। Now see the second question. How many children comes on bicycle to your school? जब 1 year before हमारी स्कूल चल रही थी in 2018, 1920 में, तब आपको याद है कितने बच्चे बाइसिकल चला कर आते थे?
मैनी चिल्ड्रन कम्स ऑन बाइसिकल टू स्कूल. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाइसिकल लेकर स्कूल आते थे, है ना. सो हियर आई हैव रिटन मैनी चिल्ड्रन कम्स ऑन बाइसिकल टू स्कूल. सो दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट in your textbook notebook. Okay beta, now see the next. Now this is the picture of some of the students who are going on the bicycle to the school. आप भी अभी बाइसिकल लेकर अभी तो स्कूल नहीं है, ट्यूशन्स आर रनिंग ऑन. तो आप, आई नो दैट, क्या आप ट्यूशन्स अपनी बाइसिकल्स लेकर जाते होंगे, या कभी कभी आपकी मम्मी ऐसा बोलते होंगे बेटा जाओ ज़रा ये थोड़ा लेकर आ जाओ ये दुकान से, तो भी आप बाइसिकल निकाल के उसको लेकर आते होंगे, है ना. यानी बाइसिकल चलाना तो सबको पसंद है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग. वी कैन डू आवर एक्सरसाइज, वो फिज़िकल एक्सरसाइज हो जाती है ना. साइकिलिंग चलाना, साइकिलिंग चलाने में क्या क्या यूज़ होता है, योर लेग्स, योर हैंड, योर बॉडी, योर माइंड, है ना. Means all the body parts are working when you are running, when you are riding the cycle. So that is a very good exercise, है ना. For to keep our body healthy, cycling is a very good exercise. सारे muscles है, हमारे bones है, हमारा blood circulation है, बहुत अच्छे से वो क्या करता है, workout करता है cycling के through. So cycle चलाना, that is a very good thing. Now see the next. Now what is the next? ये प्लेन आपकी के लिए उड़ाया मैंने, अच्छा लगा. Now गुज्जर, ये नाम ही कुछ अलग लग रहा है ना. गुज्जर यानी क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये जो व्हीकल है गुज्जर, व्हाट अ व्हीकल, क्या व्हीकल है. आप ये देख रहे हो गुज्जर. अब ये गुज्जर व्हीकल कहाँ चलता है, इन द स्टेट ऑफ द गुजरात. Student, in which state do we live and what is the name of our city, है ना. So the state, the name of our state is Gujarat. हम कौन से स्टेट में रहते हैं स्टूडेंट, we live in a Gujarat state. And what is the name of our city, the name of our city is Bharuch. So the name of the state is Gujarat. अगर आपको किसी ने पूछा कि बच्चों आप कौन से स्टेट में रहते हो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्टेट, देन व्हाट आंसर यू हैव टू गिव, द नेम ऑफ माय स्टेट इज़ गुजरात, एंड इन गुजरात आई लिव इन अ भरूच सिटी. सो दिस इज़ नोन एज अ गुज्जाड, GUJAD, गुज्जाड. ये एक मोटरसाइकिल है, मतलब एक बाइक है, और इस बाइक को ये लोग ने जुगाड़ कर कर इसके पीछे क्या लगा दिया है, लकड़े का एक काट लगा दिया है, और इसको एक नया नाम मिल गया है, वो है गुज्जाड़. लुकिंग एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, ये मोस्ट ऑफ कहाँ पर चलता है आपको पता है, गुजरात में, कच्छ में, राजस्थान, कच्छ में, सॉरी कच्छ में ये ज़्यादा चलता है. भूज कच्छ आया ना, कच्छ भूज में ये गाड़ियाँ वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी. सिटीज़ में कम मिलती है, बट वो साइड के विलेजेस में सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगी. इट्स साउंड, अब इसकी आवाज़ पता है कैसी है, बहुत अजीब आवाज़ है. चलो मेरे साथ निकालो ये सब आवाज़, पट 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 पट. इसकी आवाज़ कैसी है, बोलो मेरे साथ, पट 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 पट. कैसा बोलती है ये व्हाट इज़ द साउंड ऑफ दिस व्हीकल, ये ट्रांसपोर्टेशन का क्या साउंड है. चलो थोड़ी देर मस्ती कर लो मेरे साथ, चलो बोलो सभी लोग अच्छे से बोलो, व्हाट इज़ द साउंड ऑफ दिस बट. एक्शन करो, अपने दोनों हाथों को आगे ऐसे करो बाइक की तरह, जैसे पापा चलाते ना बाइक, वैसे एक्शन करो बाइक पकड़ने की, और थोड़ा जिगजैग घूमो, ऐसे ऊपर, ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाओ, थोड़ा जिगजैग घूमो और आवाज़ निकालो, पट 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 पट, है ना. चलो थोड़ी देर स्कूटर बन जाओ सभी लोग. अब मैं अभी तो आपको देख नहीं सकती हूँ, बट सभी लोग स्कूटर बन जाओ. यस, वेरी गुड, मज़ा आया ना. When it's run, it is not something special.
जब ये चलती है तो कुछ स्पेशल नहीं होता है. The front look like a motorcycle, but the carriage at the back is made out of the wood plucked on the wood. ये एक स्कूटर ही है, बट स्कूटर को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, गुज्जार्ड में. ये स्कूटर है, आगे वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल स्कूटर की तरह है, बट उसके पीछे वो लोग ने एक लकड़े का बैठने का सीटर बना दिया है और इसको ऐसा कर दिया है, डिज़ाइन करके कलरफुल बना दिया है. और इस गाड़ी का नाम वो लोग ने दे दिया है गुज्जार्ड. और ये कहाँ चलता है, कौन से स्टेट में, गुजरात में. नाउ सी द नेक्स्ट. देखो, गुज्जार्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट व्हीकल, यानी दो व्हीकल को जोड़कर एक व्हीकल वो लोग ने बना लिया है जिसका नाम है गुज्जार्ड. जिसका क्या नाम है, गुज्जार्ड. कैन यू सी द 4 डिफरेंट पिक्चर्स, देख लो, है ना. नाउ सी द नेक्स्ट. ये बर्ड भी आप ही के लिए है, आपको बर्ड की तरह हवा में उड़ना है. यू हैव टू बी लाइक अ बर्ड, लाइक अ फ्री बर्ड, फ्लाई इन द स्काई एंड लीव योर ड्रीम्स. डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया? यस, हम भरूच सिटी में भी गुज्जार देखते हैं, बट बहुत रेयर, नॉट सो मच, ओनली फ्यू. What do you call them in your area? हम अपने एरिया में बहुत सारी गाड़ियों को देखते हैं ना. Yes, we have a different kinds of vehicle where we live. Bike, van, car, bus, etc. ट्रक भी है, ट्रेन भी है, स्कूटर भी है, साइकिल भी है. बहुत सारे व्हीकल्स हम अपने एरिया में देखते हैं. Would you like to ride in something like this? Why? Yes, I would like to ride on it. Yeah, मैं ऐसे कुछ अलग अलग गाड़ियों पर बैठना पसंद करूँगी या करूँगा. क्यों? मुझे उसका एक्सपीरियंस लेना है, उसकी फीलिंग्स लेनी है कि वो किस तरीके से चलती है और उस पर बैठकर कितना मज़ा आता है. ओके, दिस क्वेश्चन इज कट. We will write this question in our CW notebook. So in the textbook we are not going to write this question. So student, now we will see the. So student, here we have completed our part number 3. Inshallah, in part number 4 we are going to see about the different kinds of other transportation of the different state of India. Today in this video we have learned about the bullock cart, about the camel cart, about the gujjar, है ना. We have learned about the different kinds of the vehicle. The one vehicle which was used in Rajasthan, then gujjar used in Gujarat. Now in the next video we will see about the next vehicles which are used in the different kinds of city. So आज का मेरा ये क्वेश्चन है 4th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए. यू कैन राइट नाउ द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको यूट्यूब चैनल पर कमेंट लिखने में. माई क्वेश्चन इज दिस, विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल? आपको सबसे ज़्यादा कौन सा व्हीकल पसंद है? आप अपना नाम लिखेंगे और वहाँ नीचे लिखकर मुझे आंसर्स में भेजेंगे दैट माय फेवरेट व्हीकल, उसका नाम और वो क्यों पसंद है आपको, कौन सा कलर भी पसंद है आपको व्हीकल का. तो ये सारा लिखकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे. आई विल अप्रिशिएट ऑल द स्टूडेंट्स हु विल राइट दिस आंसर. मैं सभी बच्चों को अप्रिशिएट करूँगी जो बच्चे ये नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे. टिल देन प्लीज़ स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. I am really missing you all. Take care. Bye. Allah Hafiz. See you.